مجھے یاد ہے ابھی بھی جب ہم نے پہلا اپنا پروگرام ادھر شوگر کا اور بلڈ پریشر کا کیا تھا تو اس وقت ایسے مریض بھی تھے جن کو بلڈ پریشر 200 تک اٹھتے چڑھے ہیں تو شوگر 400 تک اٹھتے چڑھے ہیں. تو خیر میرے بات ہی بس اتنے ریسرچ کرتے ہیں وہی ہوتی ہے پیراڈول کھا چڑھنے سے. تو یہ پروگرام میں نے ابھی اور جگہوں پہ بھی جا کے کرنے ہیں تاکہ میرے مارٹن پور کے لوگ اس بات سے اویئر ہوں کہ کس طرح ہم نے اگر ہم میں یہ پرابلمس ہیں تو ان کو ہم نے غور کرنا ہے. اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری بیٹی آئے گی اور وہ بتائے گی کہ زیادتیس یا زیادتیس اردو میں بولتے ہیں ڈائبیٹک یا آسان الفاظ میں شوگر بولا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو ابھی تک نہیں پتا تو ان کو اس بات کا ان جو نیچے لکھے ہوئے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ فلیکس اسپیشل میں نے اسی پروگرام کے لیے بنائی ہے اویئرنیس پروگرام کے لیے کہ آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. تو بیٹی آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائیں گی اور جو پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سن بھی سکتی ہیں. 5:15 تک ختم کریں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے فیسلٹی موجود ہوگی. 2 بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوں گی جو بھی اپنا بلڈ پریشر پہلے چیک کروانا چاہیں وہ لائن میں ذرا ترتیب سے کیونکہ آپ چرچ میں موجود ہیں شور کو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیں تو بلڈ پریشر بھی چیک کروا سکتے ہیں. اگر کوئی بہن یہ سمجھتی ہے کہ اس میں جو بھی پہلے بتائے جانے لگے ہیں شوگر کے سائنس اگر کسی میں ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکتی ہے. شوگر ان کا آج یہاں پہ فری ٹیسٹ ہوگا. اوکے ویلکم ٹو مائی اسٹوڈینٹس. گاڈ بلیس یو آل. میں آج آپ کو شوگر لیول بڑھنے کی علامات کے بارے میں بتاؤں گا. زیادہ پیاس لگنا یا بار بار منہ سوکھنا، پیشاب کا بار بار آنا اور وزن کا تیزی سے کم ہونا، بار بار بھوک لگنا اور بے جا تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا، سر درد، نظر میں کمی، وزن میں کمی، زخموں کا خراب ہونا اور آسانی سے بیماریوں کا شکار ہونا، اٹھنے میں مشکل اور شدید حالت میں بے ہوشی طاری ہونا. ابھی بیٹی نے آپ کو علامات بتائی تھی جو کہ وہ سامنے لکھی بھی ہوئی ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس وقت بیٹھ کر اسیس کریں. اور اس میں بیٹیوں نے بڑا خوبصورتی سے بتایا زیادہ پیاس لگنا. ایک تو گرمی میں ہے کہ گرمی زیادہ ہے کہ وہ آپ کا منہ سوکھ رہا ہے بار بار، لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو یہ سائن ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا بار بار منہ سوکھ رہا ہے. اور پیشاب کا بار بار آنا اکثر بعض اوقات ہم اس کو پانی نہیں ہے جانے پینے پیشاب آ ہی جاتا ہے. بعض دفعہ ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو یہ شوگر کی نشانی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات وزن میں کمی، بڑی تیزی کے ساتھ وزن میں جو کمی ہے وہ بھی اسی چیز کا باعث ہوتی ہے. پھر بار بار بھوک لگنا. نارملی ہم ناشتہ کرتے ہیں 5-6 گھنٹے کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جو شوگر والے پیشنٹ ہیں انہوں میں پنجابی کا لفظ پڑھا گی ہاڑوا پہننا، جس کو بولتے ہو نا کہ ہائے دل گھبران گیا ہے، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے بھوک سے، وہ بھی شوگر کی نشانی ہو سکتی ہے. بار بار بھوک لگنا اور تھکاوٹ اور کمزوری، پھر لڑ کا دل نہ کرنا، منجی کا وقت تک پانی کا گلاس پڑائی کرے گا تو یہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کمزوری آ رہی ہے، اس لیے آپ کا ہلنے کو اٹھنے کو کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے خصوصاً پاؤں پہ، جتیاں آگے جاتی ہیں لکڑیاں لوگی در جتن پانی ہوتا نہیں نہ ختم ہو گیا وہ کے بعد تو کبھی بھی آپ کا ایسا زخم جو ہیل نہیں ہو رہا اس سے سمجھ لیں کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا زخم ہیل نہیں ہو رہا جو کہ نارملی 3 دن کے اندر ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو یہ سارے سائن سمٹمس اب بہنیں پلیز اسیس کر لیں کہ اگر کسی کو اس قسم کے سائنس فیل ہوتے ہیں تو وہ پلیز مجھ سے رابطہ کریں.
ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है बेटी वो आपको नेक्स्ट के बारे में बताएगी, नेक्स्ट बीमारी के बारे में। मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर बढ़ने की अलामात के बारे में बताऊंगी। शदीद सर दर्द, बेहोशी, मतली या उल्टी आना, सांस में मुश्किल, बाज़ औक़ात छाती में दर्द, धुंधलापन या बेहोशी तारी होना, दिल की धड़कन का बहुत तेज होना, कुछ हालतों में नाक से खून बहना है। थैंक यू बेटा। जी, अभी देखेंगे आपको ब्लड प्रेशर के बारे में। ये है ब्लड प्रेशर और इसके सारे जो साइन सिम्टम्स बताए थे उन्होंने, वो बताया था शदीद सर दर्द। तो वो जब ब्लड प्रेशर इसलिए वो तेज प्रेशर के साथ जब दिल में सिर में जाती है तो वो क्या होता है, दर्द शुरू हो जाती है। इसी तरह जब दिल में भी आपको चूंकि वो पंप तेज कर रहा होता है, आप कहते हैं कि घबराहट है, चलनी होती है। तो ये सारी इसी तरह जब दिल बहुत ज़्यादा पंप करता है, सांस लेने में बाज़ दफ़ा मुश्किल होती है। और बाज़ औक़ात जब आँखों की जो नर्व्स आ रही हैं, आर्टरीज आ रही हैं, जब उस पर प्रेशर इतना होता है तो आपको धुंधलापन नजर आना होता है, आपको क्लियर नजर नहीं आता, क्योंकि वो भी आपकी आंखों में उसका खून का प्रेशर बहुत तेज हो रहा होता है। और इसी तरह कुछ हालतों में जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, नाक से खून आ जाते हैं, उनका मतलब ये होता है कि सर की नस फट गई, प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो फट गई, उसी से ही फालिज भी होते हैं। तो ऐसी हालत में भी आप मेरे से ज़रूर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। और जो बहनें हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के केसेस हैं, उनका हम एक हफ्ता पूरा चेकअप करते हैं, हफ्ता चेक करते हैं। और जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि आप वाकई ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, फिर हम आपको दवाई भी सजेस्ट करते हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात होती है, मैं आपको ननकाना में रेफर करती हूँ कि आप उधर जाके डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, ताकि और अगर कोई टेस्ट उन्होंने करवानी है तो वो भी करवाए जाए। तो ये था आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी को भी इन हालतों में महसूस होती है तो प्लीज़ अपने आप को सजेस्ट कर असेस करें और मेरे पास आए ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने की आने की। उन्होंने किसी भैन आगे दसिया जी मुझे पता लगा 50 फीस है। सॉरी, मेरी कोई फीस नहीं है देखने की, इसलिए कोई फीस नहीं है। आके आप अपना आसानी से ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करा सकते हैं। जो शुगर टेस्ट है वहाँ भी जब हम करते हैं तो उसके 60 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट हम जरूर देते हैं, लेकिन आज जो करवाएगा उसका फी दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको जिस्म में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की अलामात के बारे में बताऊंगी। जोड़ों में खिंचाव, जोड़ों की हरकत में मुश्किल और दर्द, हड्डियों, पाँव, हाथों और घुटनों वगैरह के जोड़ों में सूजन या सुन्न हो जाना। थैंक यू बेटा। जी, यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड मैं मेडिकली आपको नहीं समझाऊंगी, मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगली बात। जिससे मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की अलामात के बारे में बताऊंगी। इसमें कोई ज़ाहिर अलामत नहीं होती, क्योंकि इसमें खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये कम होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, छाती में दर्द, शुगर और हार्ट अटैक वगैरह कुछ भी होने के मकानात होते हैं। थैंक यू बेटा। जी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? सबसे ऊपर वाला दायरा है नॉर्मल, 100% नॉर्मल। आपकी जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? आपकी नसों में जब कचरा जमना शुरू हो जाता है, आसान अल्फाज में वो कचरा क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल कहलाता है।
इन अदर वर्ड्स आप उसको चिकनाई भी कहते हैं। तो जब भी आपकी नसों में ये जमना शुरू हो जाता है, पहले थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उनको ओरल नहीं, उनको साफ करल नहीं, तो क्या होता है फिर एंड क्या होता है? सबसे नीचे वाले को देख लें कि एंड पे क्या होता है, वो बिल्कुल कचरे से भर जाती हैं। और जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो ज़रूर अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं। वो हो सकता है कि उनके दबाव की वजह से, उनके बंद होने की वजह से वो प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा नजर आ रहा है। ये तो ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल है। अगले की तरफ आइए। अब मैं आपको जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की अलामात के बारे में बताऊंगी। नाखूनों का खराब होना या टूटना, गर्दन, कमर और टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द और आसानी से टूट जाना, कद का छोटा होना यानी जिस्म का सिकुड़ना। औरतों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है। प्रोसेस के मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, महलों में जाके किए थे। उस वक्त मैंने पिछला पूरा साल जो था वो सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस पे, शुगर पे और ब्लड प्रेशर पे जोर दिया था। सबसे ज़्यादा बुढ़िया ने इसलिए जितना सी ऑस्टियोपोरोसिस कि असी आने जम के सारी कैल्शियम से कट देंगे, मतलब पीछे लगाया जाता। तो उदों साढ़े को पैसे मुक जाते हैं, असं आते अपने तो कितों लाइए बाजी जी, घर के खर्चे कम नहीं पूरे होंगे, तो फिर हड्डियाँ इंज गलदियाँ 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 गलदियाँ। तो होंदा की है, मासा को गोडे पाड़ डिगे हैं तो कुछ टुट गया, मासा गोडे को डिगे हैं तो चुकना टुट गया, लत्तां च जान नहीं है। आम बीमारी जो औरतों में है, हाय मेरे को तो लत्तां च जान नहीं है, उठे ही नहीं जाना, टुरे ही नहीं जाना, वो ऑस्टियोपोरोसिस की कमी भी हो सकती है। बाकी चीज़ें तो होती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस की अवेयरनेस करनी है कि आया हमारी कैल्शियम की कमी तो नहीं है। और फिर उसमें वो सारी उन्होंने बताई है, जिसम में हड्डियों में सारी दर्द, और जो मेन चीज़ उन्होंने बताई है कि जिस्म का सिकुड़ना। ये देखें तस्वीर को, सारी बहनों को देखें कि किस तरह जिस्म कात निक्का होता जाता है, शरीक भी होते जाते हैं तो निक्के भी होते जाते हैं। जो अगली चीज़ क्या है, मेरा ख्याल है ये लास्ट ही है। जिसमें मैं विटामिन B12 की कमी के अलामात के बारे में बताऊंगी। विटामिन और B12 की अलामात के बारे में, इसकी अलामात अक्सर देर से और आहिस्ता आहिस्ता महसूस होती है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो शदीद सूरत भी अख्तियार कर लेती है। शुरू होने की अलामात यूँ हैं: सुस्ती, काहली, थकावट और सर दर्द, मुँह में छाले या जख्म होना, भूख ना लगना, बदहज़मी, हाथों और पाँव में सुइयाँ चुभती हुई महसूस होना, मूड का बेजा बदलना, धुंधलापन, चक्कर आना और तेज़ बुखार भी हो सकता है। थैंक यू बेटा जी। ये है आपके जिस्म में जब वाइटामिन्स बहुत सारे ABCD सारे मेरे जिक्र कर रहे हैं, बेतहाशा वाइटामिन्स हैं जो हमें खुराकों से दिए जाते हैं, और चूँकि हम उस तरह पूरी नहीं डाइट ले सकते तो फिर क्या होता है कि हमें डाइटरी सप्लीमेंट खानी पड़ती है। डाइटरी सप्लीमेंट की पूरी बात कि ये दवाई नहीं है, ये एक खुराक का हिस्सा है जो आपको हर रोज़ एक लेनी चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन्स के साथ साथ एक खास विटामिन है, विटामिन B12। उसकी कमी से क्या होता है, हाथ पाँव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, कई बार इस यानी सेक निकल रहा है, कभी यानी ऐसे ठंडे ठंडे और उसमें सुइयाँ चुभती हैं, सुन्न हो जाते हैं, जेड़े पासे बहुत उठन लगे हैं जिनमें है ही कोई, तो वो एक्चुअली सुन्न हो जाते हैं।
उसके लिए जो होती है B12 एक अलहदा सप्लीमेंट होता है, अलहदा डब्बी होती है, और इसी तरह ये वाइटामिन्स होती है जो आपको खाने से मिलती है, कि आपको सारा कुछ गाइड कर सकूँ। और ये भी सारी इब्तदाई तिब्बी अंदाज है आपकी कि आपको ये पता लग जाए कि मुझे क्या बीमारी है। उसके अलावा अगर मैं समझती हूँ कि इस मरीज़ को हॉस्पिटल में जाना चाहे तो मैं उसको गाइड करती हूँ। ये चेकअप, एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल चेकअप कहते हैं जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको अपना रेगुलर औरतों को अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर जो है वो लाजमी चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ जाए तो बच्चे पे जो है नुकसानदेह असरात होते हैं। और उसकी जो 12 हफ्ते से के बाद 12, किसी के 14, किसी के 16 हफ्ते में जब उसके दिल की धड़कन शुरू हो जाती है बच्चे की, तो उसका भी हमारा एक आला है, इसको डॉपलर कहते हैं। इसके ज़रिए हम माँ को भी डुब डुब सुना देते हैं कि आपका बच्चा जो है खुदा उनके फजल से बिल्कुल ठीक उसका गुण बन गया है। तो आपकी खिदमत के लिए आपकी बहन बिफर वहाँ मौजूद है। अभी इसके बाद जो है मैं छोटी सी दुआ के साथ ख़त्म करूँगी। उसके बाद जो भी बहनें ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहें आप अपने चले जाएँ और पोजिशन ले लें, तो आप चेक करवा सकती हैं। इतवार को वैसे ही बंद होता है और बाकी सारे दिन 5 से 7 बजे तक। अभी कोई भी चेकअप करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई बहन छोटी सी दुआ करना चाहेगी, कोई बहन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, क्योंकि मैं अपने लिए खुद से दुआ करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप मुझे ब्लेस करें, मैं में से कोई मुझे और मेरी टीम को ब्लेस करे कि खुदा मुझे और ज़्यादा, बल्कि हमेशा हाथ बढ़ाकर हमें संभालना है। खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी बंदी ने बड़े अच्छे से सादा लफ्ज़ों में हमें हमारी सेहत के लिए समझाया है, क्योंकि जब तू अपने लोगों के दिलों में ख्याल डालता है और अक्ल दनाई फहम देता है और हुनर से नवाजता है, तो ये खुदा तेरी मेहर है, तेरी मेहरबानी है कि तू हमसे प्यार करता है और तरह तरह की नेमतों से बरकतों से नवाजता है। तूने अपनी बंदी को हमेशा कसरत से इस्तेमाल किया, तूने अपनी बंदी को खिदमत का तोड़ा दिया और खुदा दुनियावी तौर पर भी खुदा तुम्हें अता किया कि वो ये खिदमत करें और खुदा तेरे लोगों के लिए सेहत तंदुरुस्ती का खुदा को वसीला बने, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ बढ़ोतरी की तरफ हों और हम अच्छे ईमानदार रूहानी तौर पर सेहत तंदुरुस्ती पाते हुए तेरे नाम की गवाही दें कि हम खुदा तेरे हैं और तेरे ही खुदा पाक को अपनी ज़िंदगियों में मांगे। तेरी बंदी के लिए ख़ास तौर पर मिन्नत करते हैं जो एम थी अपनी बंदी को दिया, तो अपना हाथ बढ़ा और हर रूहानी और दुनियावी नेमत से नवाज और खुदा तमाम मुश्किलों को परेशानियों को जो इब्लीस की तरफ से आती हैं अपने यीशु के नाम से दूर कर दे। और खुदा मेरी बेट बंदी ने जो बच्चों को तैयार किया है, जिनको खुदा बाइबल के हवालाजात सिखाती हैं, समझाती हैं, सूझबूझ देती हैं, ज़िंदगी की बातें सिखाती हैं, क्योंकि खुदा तुम ही हमारा जिंदा आसमानी बाप है और खुदा तुम ही हमें तौफीक देता है कि हम बच्चों की रूहानी तौर पर भी तरबियत करें और दुनियावी तौर पर भी इन बच्चों को खुदा तेरे हैंड ओवर करते हैं। खुदा इनको जवानी के अयाम में संभाल और इनको अक्ल दनाई फहम दे, जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ते हैं तेरे रुफान में भी बढ़े और खुदा ने नन्ही जानों को नन्हे जहनों को तू अपने पाक का मस्सा दे और अपनी बंदी के साथ खिदमत करने का और शौक दे। हमेशा खुदा अपने खानदानों के लिए बरकत का बायस हो, कलीसिया के लिए बरकत का बायस हो और खुदा बड़े होकर हमेशा इस बात की गवाही दें कि तेरी बंदी के वसीला से हम आज आगे बढ़े हैं और खुदा इनकी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज का झुकना फिर बैठना खुदा तुझे पसंद आए और एक बार फिर खुदा तेरी बंदी के लिए इंतजार करती हूँ, अपना हाथ बढ़ा दे और कुव्वत हिम्मत ताकत दे, ताकि खुदा तेरा रहम तेरा फजल पाकर दूसरों के लिए खुदा वसीला बने, रूहानी तौर पर भी दुनियावी तौर पर भी, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ शुक्रगुजारी करती हुई नजर आएँ। हमारी दुआ को शुक्रगुजारी को मिन्नत को सुनना और कबूल करना मांगते हैं तेरे कादर और जलाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
Black pressure check up.